Hello, Assalamu alaikum, friends. I am Hussein Lagari, and we are here for you for the chemistry class. Sanala Jawri Saab is here. He will deliver his first class on the chemistry, his first lecture. So I hope it will be great to discuss chemistry and the topics of chemistry throughout this course. And I hope we will have good interaction during this course and during these classes. So now I would like to request Sir Sanaullah Jamri Saab to start his class. Sanaullah Saab, are you here? Yes, sir, I am here for you. So let's Uh, start. Our learners are here to. Thank you, sir. I wish all the listeners and viewers and welcome on the page of SSDP for the session of 2021. And first of all, I would like to pay thanks to all the management of Sindhi Skill Developments who have given me opportunity to discuss the ideas of chemistry with you people and also the youngsters of the Sindh, especially belonging to the grade 11 and 12. So in grade 11 and 12, we have uh, courses of chemistry, and it is consist of the two books. And in first text, in the book of first year textbook, we have 8 chapters, and these 8 chapters are consist of the different topics. And due to the shortage of the classes, so we have selected the most important topics from the chapters of first year textbook of chemistry and inter textbooks of the chemistry. And first chapter, which is the most common and important chapter, and basically I say that this chapter is the one of the fundamental chapter of the chemistry, and there are so many fundamental concept in chemistry. So that's why the title of this chapter is Introduction to Fundamental Concept of the Chemistry. So this chapter will be covered, inshallah. I will try to cover in 3 classes. And in this chapter, we will discuss about the definition of chemistry and its various applications in industries and uh, environment and in our daily life also. Secondly, we will discuss about the empirical formula, molecular formula, empirical mass, formula mass, atomic mass, mole and Avogadro's number, and the calculation based upon chemical equations. Basically, we have selected in each chapter, or we have tried to select those chapters which are the part of the anti-test. So, in first chapter, we will discuss about the introduction of chemistry, its various applications in industry and daily life. Secondly, we will discuss about the empirical formula, molecular formula, empirical mass, formula mass, atomic mass, and calculation based upon chemical equation. And simply we call it stoichiometry. So in this chapter of first year, we have second chapter, that is the uh, 3 states of matter. So basically in this chapter, we will discuss about the 3 states of matter, not only 3 states, but we will discuss about the fourth state of matter, which is plasma, which is not included our syllabus, but it is written in this textbook of Punjab and also in the federal government book. So we will give a touch up of the those subjects too, the textbooks too. So in this chapter, we will discuss about the 3 states of matter, which are gases, liquids, and solids. Furthermore, we will discuss about the gas laws and the types of the solids, which are written in the last of this chapter. So in second chapter, we have 2 classes in which we cover most probably 3 topics, which are the gases, liquid, and solid, their basic introduction. Then we will discuss about the laws of gases, and then we will discuss finally the types of the crystals. And in the third chapter, that is the atomic structure, which is one of the most important in all respects. And there are so many questions and exams from this chapter.
And also the MCQs chapters have been taken from in the past test of the MDCAT and pre-engineering. So this chapter is one of the most important chapter in the first year textbook of chemistry. So inshallah, we will try to complete in this chapter in 3 lectures. And in this chapter, we will discuss about the atomic structure of an atom. के फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनकी वजह से हमें पता चला कि एटम जो है वो करेंगे. Then we will discuss about the shells, subshells, degenerate orbitals, and one of the most important topic in the whole textbook of first year chemistry, that is electronic configuration. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पढ़े बगैर हम जो है एंटर के जितने भी फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं उनको नहीं समझ सकते, इसलिए भी हमने उस टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूडेड किया है. So in chapter number 3 we will discuss about the historical background of the structure of the atom, and then we will discuss about the shells, energy levels, orbits, their structures, and then we will discuss about the electronic configuration, their rules, and various practical examples we will have for the electronic configuration. So one of the most important chapter in this first year chemistry text is chapter number 4. सर प्लीज इस स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे करें. So chapter number 4 is the chemical bonding. It is one of the most important chapter in first year chemistry. We will try to complete this chapter into 3 to 4 lectures. In first lecture, we will discuss about the types of the bond, which are basically ionic bond, covalent bond, and coordinate bond, along with their examples. Not only we will discuss about their examples, but also we will discuss the formation of the covalent bond, how a covalent bond is formed, how ionic bond is formed, and then we will discuss about the properties of covalent compounds, covalent bonds, and ionic compounds and ionic bonds, coordinate compounds and coordinate bond. Or we will discuss those molecules which contain coordinative covalent bond. And then we will discuss about the another type of the bond, that is sigma and pi bond, which is also a main important topic in this chapter. बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज एंटी टेस्ट के यहाँ से आते हैं कि भाई फिलहाल कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड है, फिलहाल कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड्स की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं. तो ये सब कुछ इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. तो चैप्टर 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ द बॉन्ड which are ionic bond, covalent bond, and coordinate covalent bond along with their examples. Secondly, we will discuss about the type of covalent bonds, which is basically sigma and covalent bonds. And then we will discuss the most important topic of the chapter number 4, which is hybridization. I think it is a hottest topic in the first year textbook, hybridization. And then we will discuss about the shape of the molecules in terms of electron pair repulsive model and in terms of hybridization. So in chapter number 4, first we will go through to the types of the covalent bonds, and then we will discuss about the hybridization and its various types along with their examples, and then we will discuss about the shape of the molecules. Then we will come to next chapter, that is chapter number 5, and the title of chapter number 5 is energetics of chemical reaction. In this reaction, in this chapter, we will discuss about the thermochemical reactions. And basically we have two types of the thermochemical reactions. One is exothermic and endothermic reaction. We will define or we will describe these reactions in detail along with their appropriate examples. Secondly, in this chapter, we will discuss the thermodynamics terms, which are system, surrounding, boundaries, along with their real and imaginary examples. Then in this chapter, we will also discuss about the first law of thermodynamics and its various applications and all the process which are occurring in first thermodynamics and Carnot cycle also.
Finally, in this chapter, we will discuss about the Hazes law of summation, which is one of the most important topic in chapter number 5. So, inshallah, we will try to complete this chapter into uh, one lecture. Next to this chapter, we have chapter number 6, which is chemical equilibrium, and it is also one of the important topic or the important chapter in the text and the first year textbook of chemistry. आपने जितने भी टेस्ट देखे होंगे, चाहे वो पीएमडीसी के हों, मेडिकल एंट्री टेस्ट के हों, इवन जो भी कॉलेज साइड लेक्चरशिप की जो टेस्ट होते हैं, उनके अंदर ये जितने भी हमने टॉपिक्स चैप्टर्स में से वो सिलेक्ट किए हैं जो कॉमनली जितने भी जहाँ भी जिस किस्म की केमिस्ट्री की टेस्ट आती है वहाँ से हमने टॉपिक लिए हैं और उन्हीं टॉपिक में से ही जो है ना वो क्वेश्चंस आते हैं। ये कहने की बात नहीं है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन जब ये फर्स्ट ईयर का टेस्ट कंप्लीट होगा तो हम आपको एक टेस्ट देंगे इंशाल्लाह, टेस्ट लेंगे टेस्ट, लेकिन उसके साथ हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में से कौन से ईयर में कौन सा जो एमसीक्यूज है वो कौन सी टेस्ट में आया, पीएमडीसी की कौन सी टेस्ट में आया, मेरा यूनिस की टेस्ट है, और दूसरे जितने भी हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री के टेस्ट लिए जाते हैं वहाँ पे कौन कौन से एमसीक्यूज हमारे इस टेक्स्ट बुक से कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे उनमें से जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे या आ गए हैं वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। So inshallah in chapter number 5 we will have the type of the reactions which are thermochemical reactions, exothermic, endothermic, thermodynamics terms, first law of thermodynamics and Hays law. Chapter number 7, this is the longest chapter in first year textbook, and basically it has two parts. One is electrolytes solution and other is electrolytes. So we will discuss the topic of solution and electrolytes. In first lecture, we will discuss about the solution and their units. So we will define the solution, what is a solution, and then we will discuss about the units of the concentration of solutions. So we will define first concentration, then their units. So the units of concentration are of the two types. One are the physical units, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कभी के परसेंटेज वेट परसेंट सॉल्यूशन होते हैं, वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन होते हैं, वेट वॉल्यूम परसेंट, ये फिजिकल यूनिट्स होते हैं कंसंट्रेशन के। उसके अलावा सॉल्यूशन के केमिकल यूनिट्स भी होते हैं, वो उसके अंदर मोलारिटी भी है, नॉर्मलिटी भी है, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी, ऑल दीज आर द यूनिट्स ऑफ केमिकल यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन हम जो है वो यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है वो मोलारिटी है, नॉर्मलिटी है, मोलैलिटी है, इनको इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। Another topic in chapter number 7 which is most important, that is the oxidation number. अब 2000 से लेके 2021 तक 21 साल के जितने भी पेपर्स हैं पीएम पेरी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के हों, चाहे वो मेरान यूनिवर्सिटी या किसी भी पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हों, एक वाहिद ये एक टॉपिक है जहां से जरूर क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, फला कंपाउंड में फला मेटल है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कैसे होगी, कितनी होगी। तो उसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए हमने चैप्टर नंबर 7 से इस टॉपिक को भी सिलेक्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिटेल, and secondly thirdly we will discuss about the acid and bases, which is one of the also the most important topic, and then we will move to pH. तो ये सारे टॉपिक हैं जो चैप्टर 7 में डिस्कस किए जाएंगे। एक तो सॉल्यूशंस, दूसरा उनके जो यूनिट्स हैं केमिकल फिजिकल वो सारे डिस्कस होंगे। देन वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन स्टेट and acid and bases, and finally we will discuss pH of a solution. And the last chapter in this book is the chapter number 8, that is introduction to chemical kinetics. इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, हर टेस्ट में आते हैं। इसको भी हम इसमें से भी हमने वो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जो एक तो किसी भी एंट्री टेस्ट में आए या किसी भी एग्जाम के अंदर जो है ना थियोरेटिकल एग्जाम, जो आप एग्जाम के बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने मोस्ट प्रोबेबली उन टॉपिक्स को सिलेक्ट किया हुआ है जो या तो एंट्री टेस्ट में आते हैं या जो है वो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं।
तो चैप्टर नंबर 8 में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स and the rate of reaction, and finally last topic is factors affecting the rate of reaction. तो पूरे चैप्टर, पूरा बुक, इसके जो 8 चैप्टर हैं वो कंप्लीट करने के बाद हम आपसे एक जो है एमसीक्यू टेस्ट लेंगे। तो उस एमसीक्यू टेस्ट के बेस पे हम आपकी एवेल्यूशन करेंगे। नॉट ओनली दिस बट हम अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि जो भी हमारे वीडियोस या लेक्चर्स हमारे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे जो शेयर होते हैं आप लोगों के साथ आपकी रहनुमाई के लिए, तो हम वहाँ पे ओपनली स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भाई आप कोई भी एमसीक्यूज हो या कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। नॉट ओनली दिस बट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आसानी के लिए हम यह भी करते हैं कि स्टूडेंट्स का जो नंबर, टीचर का जो नंबर है वो हम उनके साथ शेयर करते हैं, ताकि जो है ना वो उनसे अगर किसी ऑनलाइन डिस्टरबेंस की वजह से वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते तो वो उनसे डायरेक्टली भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का टेक्स्ट बुक है बेसिकली इसके अंदर 19 क्लासेस हैं, जिसमें से 18 जो क्लासेस हैं वो टीचिंग के हैं और एक क्लास जो है वो आपकी है टेस्ट की। तो इंशाल्लाह सर नेक्स्ट नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट पेज दे। We will have 19 chapter 11 chapters in the textbook of Enter, and in this book, basically the book of the Enter chemistry has been divided into 4 branches of the chemistry. One is inorganic chemistry, chapter number 1 से लेके 5 तक जितने भी chapters हैं वो उनको हम कहते हैं कि ये inorganic chemistry के chapter हैं। और जो 6, 7, 8, 9 जो चैप्टर हैं ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो सेकंड पार्ट जो इंटर टेक्स्ट बुक का है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। चैप्टर नंबर 10 जो है वो बायो केमिस्ट्री है, जिसको आप केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और चैप्टर नंबर जो 11 है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल चैप्टर है, जिसके हम अंदर हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस को है ना सीखेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि पूरी ये जो इंटर की टेक्स्ट बुक है इसके अंदर 4 केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो पढ़ाई जाती हैं। फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 6 से लेके 9 तक आप प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जबकि 10th जो चैप्टर है वो बायो केमिस्ट्री का है और लास्ट वन इज ऑफ द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंशाल्लाह हम हर एक चैप्टर को वन बाय वन अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो इंटर के अंदर जो है आप देखेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के चैप्टर को हम 3 क्लासेस में कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अंदर हम जो है कैसे पीरियोडिक टेबल जो है जो अभी आपके पास है ये कितने प्रोसेस है या मराइल से गुजर के आपके पास आई है उन सबको डिस्कस करेंगे। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमारे पास बहुत सारे पीरियोडिक लॉज होते हैं, जिनमें आप पहले पढ़ेंगे हेजनबर्ग, पहले हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, मोजले क्लासिफिकेशन, and finally we will discuss about the long form of the periodic table। और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बाद जो है हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने टाइप्स के एलिमेंट्स हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे फाइनली। तो in first chapter of the inter textbook we will discuss about the periodic laws, or we will discuss about the periodic classification, and then we will discuss the classification of the elements on the basis of long form of the periodic table or electronic configuration। तो उसके अलावा second chapter that we have hydrogen। तो इंशाल्लाह this is the shortest chapter in the inter textbook। तो इसको हम एक लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भाई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, के हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो पीरियोडिक टेबल में कैसी है। उसके बाद इसके बाइनरी कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे
वो किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन। फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन। तो चैप्टर नंबर 3 पे हम आएंगे, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनकी जनरल कैरेक्टर्स कौन सी है। देन वी विल डिस्कस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। देन वी हैव चैप्टर नंबर 4। उस चैप्टर नंबर 4 के अंदर दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उस चैप्टर के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप टेंट्स कौन से हैं, कौन कौन से ग्रुप टेंट्स हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि भाई एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, और जो है हाइड्रेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेटल कैरेक्टर, रिएक्टिविटी, ये जो सारे ग्रुप टेंट्स हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप टेंट्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके अंदर जो है हम ट्रांजिशन कंपाउंड्स जो हैं उनकी स्टडी करेंगे। उनमें पहले वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द transition elements, and then we will discuss about the electronic configuration of first 10 transition elements, d block elements, and then we will discuss about their chemical properties of d block elements। and एक लेक्चर होगा हमारे पास जिसमें हम डिस्कस करेंगे भाई नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं चैप्टर नंबर 5 में। उसके अंदर एक नॉमेनक्लेचर जो जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर, उसके अंदर जितने भी आईपिक रूल्स हैं कॉमन कल्चर के उनको सबको हम डिस्कस करेंगे। एंड इन चैप्टर नंबर 6 which is the most fundamental chapter considered in the organic chemistry, in which first of all we will discuss about the introduction of organic compounds, their first discovery, and the organic chemistry, organic chemistry किसको कहते हैं, और होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसके अलावा आइसोमराइजेशन, and which is also one of the most important topic, and then finally we will discuss about the nomenclature which is most important। nomenclature हम डिस्कस करेंगे हर एक लेक्चर की। और nomenclature जेका ऐसा हुआ असां डिस्कस कंदासीं, ऐं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन nomenclature में जेतिरा बि क्यूरीज हूंदा तव्हां सभिनी खे उन्हनि खे असां सॉल्व करण जी कोशिशि कंदासीं या आंसर ॾियण जी कोशिशि कंदासीं। पोइ उन खां पोइ चैप्टर नंबर 7 जेको आहे केमिस्ट्री ऑफ दी हाइड्रोकार्बन्स, ऐं केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में असां जेको डिस्कस कंदासीं सभ खां पहिरियों जेको टॉपिक हूंदो उहो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हूंदो, जंहिंमें असां डिस्कस कंदा आहियूं त कहिड़ा कंपाउंड सेचुरेटेड आहिनि, कहिड़ा कंपाउंड्स अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स आहिनि। असां पहिरियों उन टॉपिक खे कवर कंदासीं। सेकेंडली असां डिस्कस कंदासीं ईथेन मॉलिक्यूल खे, ईथीन खे ऐं ईथाइन खे। पोइ इन्हनि जे करे त असांखे इहा ख़बर पए त सेचुरेटेड कंपाउंड्स में ऐं अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे। सिंपली हींअर ॻाल्हि कयूं त सेचुरेटेड ऐं अनसेचुरेटेड कंपाउंड में उन्हनि जे रिएक्शन्स में फ़र्क़ु आहे, उन्हनि जे प्रिपरेशन्स में फ़र्क़ु आहे, उन जे अंदरि जेका बॉन्डिंग आहे कार्बन कार्बन जे विच में उन में फ़र्क़ु आहे। असां उन्हनि खे डिस्कस कंदासीं। चैप्टर नंबर 7 में असां ईथेन, ईथीन ऐं ईथाइन असां उनजी स्ट्रक्चर खे डिस्कस कंदासीं, उनजी केमिकल प्रॉपर्टीज़ खे डिस्कस कंदासीं, केतिरा रिएक्शन्स आहिनि ईथेन जा, कहिड़ा रिएक्शन्स आहिनि ईथीन जा, ऐं कहिड़ा ऐं केतिरा रिएक्शन्स आहिनि ईथाइन जा। उन खां पोइ असां डिस्कस कंदासीं बेंज़ीन, ऐं बेंज़ीन बि हिकिड़ो तमामु अहम टॉपिक आहे असांजे इंटर जे टेक्स्ट बुक में, ऐं तक़रीबन जेतिरियूं बि एंट्री टेस्ट थियनि थियूं उन्हनि सभिनीनि में न फ़क़ति एंट्री टेस्ट में पर बोर्ड जे एग्ज़ाम में बि जेको आहे सो इलाही सारा क्वेश्चन्स हर साल बेंज़ीन मां ज़रूरु ईंदा आहिनि। तो बेंज़ीन जी स्ट्रक्चर असीं पढ़ंदासीं ऐं उन खां पोइ असां बेंज़ीन जा रिएक्शन डिस्कस कंदासीं। ये सभु शयूं डिस्कस करण खां पोइ असां चैप्टर नंबर 8 ॾे मूव कंदासीं, जेको असांजो हूंदो अल्काइल हेलाइड्स। ऐं अल्काइल हेलाइड्स बेसिकली तमामु सिंपल चैप्टर आहे, इंटर में तमामु नंढो चैप्टर आहे, आसान आहे, जंहिंमें सभ खां पहिरियों असां अल्काइल हेलाइड्स जो इंट्रोडक्शन पढ़ंदासीं ऐं उन जे इंट्रोडक्शन में असां उन जा क्लासिस पढ़ंदासीं त अल्काइल हेलाइड्स घणनि क़िस्मनि जा आहिनि, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स कहिड़ा हूंदा, सेकेंडरी कहिड़ा हूंदा, टर्शरी कहिड़ा हूंदा, कहिड़े क़िस्मनि सां। ऐं उन खां पोइ असां इन जूं प्रिपरेशन्स पढ़ंदासीं अल्काइल हेलाइड्स जूं।
ऐं फाइनली असां उन्हनि जा रिएक्शन्स पढ़ंदासीं जेके तमामु घणा इंपॉर्टेंट आहिनि, जंहिंखे असां चवंदा आहियूं SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन 1 ऐं एलिमिनेशन रिएक्शन 2, इट मीन्स E1 एंड E2 रिएक्शन। इहे सभई जेके बि रिएक्शन्स आहिनि अल्काइल हेलाइड्स जा SN1 SN2, इन्हनि मां जेतिरियूं बि टेस्टूं थियनि थियूं उन्हनि सभिनीनि मां इन्हनि मां क्वेश्चन बि ज़रूरु ईंदो आहे। देन चैप्टर नंबर 9 जेको आहे उहो कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप, कहिड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़बा जंहिंजे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन सां गॾु ऑक्सीजन मौजूदु हूंदो, असां उन्हनि खे डिस्कस कंदासीं। ऐं उहे जेके कंपाउंड्स आहिनि उन्हनि में सभ खां पहिरियों असां पढ़ंदासीं अल्कोहल्स खे, अल्कोहल जी प्रिपरेशन पढ़ंदासीं, अल्कोहल जी प्रॉपर्टीज़ पढ़ंदासीं, उन्हनि जी क्लासिफिकेशन ऐं उनजा रिएक्शन्स पढ़ंदासीं। उन खां पोइ असां पढ़ंदासीं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, थोरी घणी हिन जी नॉमनक्लेचर खे बि डिस्कस कबो, छो त हूअं त नॉमनक्लेचर असां चैप्टर 6 में पढ़ी ईंदासीं, पर वरी बि असां हिते जॾहिं हिननि चैप्टर्स खे पढ़ंदासीं त थोरी थोरी हुननि जी असां नॉमनक्लेचर जो इंट्रोडक्शन बि कंदा हलंदासीं। हुन सां गॾु असां चैप्टर नंबर 8 में सॉरी 9 में अल्कोहल्स पढ़ंदासीं, अल्कोहल सां गॾु अल्डिहाइड ऐं कीटोन पढ़ंदासीं। उन्हनि में असां उनजी बुनियादी जेका क्लासिफिकेशन आहे उहा पढ़ंदासीं। असां अल्कोहल्स ऐं या अल्डिहाइड एंड कीटोन जी प्रिपरेशन पढ़ंदासीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट असां उनजूं केमिकल रिएक्शन्स पढ़ंदासीं। ऐं उन खां पोइ असां इन ई चैप्टर में ॿियो जेको कंपाउंड आहे उहो कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स जेके आहिनि असां उहे पढ़ंदासीं, उन्हनि जूं प्रॉपर्टीज़, उन्हनि जी नॉमनक्लेचर, उन्हनि जा रिएक्शन्स ऐं उन्हनि जा असां यूज़िस पढ़ंदासीं। देन उन खां बाद में असां डिस्कस कंदासीं फाइनल जेको टॉपिक आहे चैप्टर नंबर 9 जो ईथर्स आहे। ईथर्स बि पढ़ंदासीं, इंशाल्लाह ईस्टर्स बि पढ़ंदासीं ऐं असां उनखे डिस्कस कंदासीं, उन्हनि जूं प्रिपरेशन्स, उन्हनि जूं प्रॉपर्टीज़ ऐं मोस्ट प्रोबेबल उन्हनि जा रिएक्शन्स। तो 9 चैप्टर में जेतिरा बि असां वटि कंपाउंड्स आहिनि, ऑर्गेनिक कंपाउंड जेके बेसिकली 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड असां वटि ॾिनल आहिनि 9 चैप्टर में, जंहिंमें अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स ऐं एस्टर्स ऐं ईथर्स, इहे कंपाउंड्स ॾिनल आहिनि, बल्कि होमोलॉगस सीरीज़ आहिनि। इन्हनि सभिनी कंपाउंड्स जी असां थोरी नॉमनक्लेचर, उन्हनि जो असां बैकग्राउंड ॾींदासीं, इंट्रोडक्शन कराईंदासीं। देन असां उन्हनि जूं प्रॉपर्टीज़ ऐं उन खां पोइ असां उन्हनि जो रिएक्शन्स असां पढ़ंदासीं, विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उन खां पोइ असां वटि आहे चैप्टर नंबर 10 बायोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री। ऐं बायोकेमिस्ट्री खे असां केमिस्ट्री ऑफ लाइफ बि करे चवंदा आहियूं। बेसिकली इहो इन जे अंदरि असां सभ खां पहिरियों फूड ऐं न्यूट्रिशन ते ॻाल्हाईंदासीं, त फूड छा आहे, न्यूट्रिशन छा आहे, न्यूट्रिशन जा केतिरा टाइप्स हूंदा आहिनि, ऐं उन खां पोइ असां न्यूट्रिएंट्स ते ॻाल्हाईंदासीं, त कहिड़े बि फूड जे अंदरि कहिड़े क़िस्म जा न्यूट्रिएंट्स मौजूदु हूंदा आहिनि, उन्हनि सभिनी खे डिस्कस कंदासीं। ऐं बुनियादी जेके असां वटि न्यूट्रिएंट्स मौजूदु आहिनि उहे आहिनि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स ऐं वाइटामिन्स। इहे सभई बुनियादी असां वटि न्यूट्रिएंट्स आहिनि। असां इन्हनि सभिनीनि जी जेका आहे सा बेसिक केमिस्ट्री पढ़ंदासीं। मिसाल जीअं असां पढ़ंदासीं त बाबा प्रोटीन्स छा जा ठहियल आहिनि, उन में बॉन्डिंग कहिड़ी आहे, उन्हनि जी स्ट्रक्चर कहिड़ी आहे ऐं उनजा क़िस्म केतिरा आहिनि। ऐं उन खां पोइ असां लिपिड पढ़ंदासीं, त लिपिड जी बॉन्डिंग कहिड़ी आहे ऐं लिपिड जा क़िस्म केतिरा आहिनि ऐं लिपिड जो इस्तेमालु केतिरो करणु घुरिजे। सो बायोलॉजिकल जेके मालिक्यूल्स आहिनि, जीअं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, वाइटामिन्स ऐं थोरा मिनरल्स बि, असां उन्हनि खे डिस्कस कंदासीं, उन्हनि जूं प्रॉपर्टीज़ ऐं उन सां गॾु असां उन्हनि जा रिएक्शन्स ऐं उनजी स्ट्रक्चर खे असां डिस्कस कंदासीं। उन सां गॾु असां इहो बि डिस्कस कंदासीं त लिविंग ऑर्गेनिज़म जे अंदरि इहे जेके बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स आहिनि उन्हनि जो कहिड़ो रोल आहे, असां हिन खे डिस्कस कंदासीं। देन असां वटि आहे हिकिड़ो लास्ट चैप्टर आहे जेको आहे चैप्टर नंबर 11, जंहिंजो नालो आहे इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। बेसिकली पाकिस्तान जे अंदरि जेके केमिकल इंडस्ट्रीज़ आहिनि उहे उन्हनि खे असां डिस्कस कंदासीं। इंडस्ट्रीज़ त इलाही सारियूं आहिनि, पर मोस्ट कॉमन जेके इंडस्ट्रीज़ आहिनि उन्हनि में फर्टिलाइज़र्स जेके आहिनि से असां उन्हनि जूं इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र्स जो ठहिणु, फर्टिलाइज़र्स जा टाइप्स ऐं उनजा यूज़िस, ऐं पाकिस्तान में कहिड़ा फर्टिलाइज़र्स किथे प्रिपेयर थियनि था ऐं कहिड़े तरीक़े सां यूज़ थियनि था, उनजा हैज़र्डस इफेक्ट्स कहिड़ा आहिनि, असां उन्हनि खे टच कंदासीं। उन खां पोइ आहे डिटर्जेंट्स। असां डिटर्जेंट खे पढ़ंदासीं त डिटर्जेंट कीअं पढ़िबो आहे, डिटर्जेंट जेको आहे मतिलबु त कीअं ठहंदा आहिनि इंडस्ट्री में ऐं उनजी केमिकल कंपोज़िशन कहिड़ी आहे ऐं उहो वर्कआउट कीअं कंदो आहे डिटर्जेंट। उन खां पोइ असां डिस्कस कंदासीं गिलास, गिलास जी कंपोज़िशन, इंडस्ट्री में गिलास खे कीअं प्रिपेयर कबो आहे, उनजा बेसिक रिएक्शन्स पढ़ंदासीं। ऐं गिलास जा टाइप्स घणा हूंदा आहिनि ऐं हर टाइप जी कंपोज़िशन कहिड़ी आहे,
असां हुनखे टच कंदासीं। चैप्टर 11 में सां गॾु असां रेयान जंहिंखे असां ह्यूमन या मैन मेड जेको आहे फाइबर बि करे चवंदा आहियूं, उहो कीअं प्रिपेयर कबो आहे ऐं उन जूं एप्लीकेशन्स कहिड़ियूं आहिनि। उन सां गॾु असां पढ़ंदासीं प्लास्टिक एंड फाइनली असां पेंट्स पढ़ी इन चैप्टर खे पूरो कंदासीं। ऐं इन चैप्टर जे एंड खां पोइ असां हिकिड़ी मेगा टेस्ट तव्हां खां पूरे इन सेकंड टेक्स्ट जेको इंटर जो टेक्स्ट बुक आहे उन मां असां तव्हां खां टेस्ट वठंदासीं। ऐं उन खां पोइ हिकु ॿ लेक्चर इनशाला मां मैनेजमेंट खे गुज़ारिश कंदुसि त असांखे हिकु ॿ अहिड़ो क्लास बि ॾिनो वञे जंहिंमें असां डिस्कस सॼे पूरे फर्स्ट ईयर ऐं इंटर जे टेक्स्ट बुक मां तव्हां स्टूडेंट्स खां हिकिड़ी जेका आहे असेसमेंट टेस्ट वठूं। तो इहो असांजे इन जेको इंट्रोडक्टरी लेक्चर जेको आहे उन में असां इहो पढ़ियोसीं त असां सिखियोसीं, ॿुधायोसीं त कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं जेके आहिनि से असां इंटर टेक्स्ट बुक में ऐं फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक में पढ़ंदासीं या कहिड़ियूं शयूं असांजे सिलेबस में एड आहिनि। जी सर हुसैन साहब। ऐं ज़बरदस्त पंहिंजो ही इंट्रोडक्टरी क्लास हो। इंशाल्लाह सुभाणे खां ऑनवर्ड्स क्लासिस ये कंटिन्यू आहिनि ऐं जेके बि असांजा लर्नर्स ॿुधनि पिया उन्हनि खे ॿुधाइण था चाहियूं इंशाल्लाह हफ़्ते में 6 ॾींहं ये क्लासिस हलंदियूं, मंडे टू सैटरडे। ऐं कोशिशि कंदासीं त उन्हनि ॾींहंनि में जेको बि कोर्स आहे उहो सुठे तरीक़े सां थींदो रहे, डिलीवर थींदो रहे। तव्हांखे जेके बि सवाल आहिनि उहे तव्हां असांखे लिखी करे मोकिले सघो था ऐं फेसबुक ते इहा जेका वीडियो अवेलेबल हूंदी उन ते तव्हां इहे सवाल लिखी करे मोकिले सघो था। उहे बाद में ॿिए ॾींहं ते ॿिए लेक्चर में उहे सुठे तरीक़े सां जेको आहे सनाउल्लाह साहब जेको आहिनि उहे सुठे नमूने सां उन्हनि खे एड्रेस कंदा, उन्हनि जो जवाबु ॾींदा। ऐं कंहिं बि सवाल करण में को हिजाब नाहे करिणो तव्हांखे, न वरी का हेजिटेशन फील करणी आहे। यू आर फ्री टू आस्क एंड वी आर हियर टू आंसर यू। इहा असांजी ज़िमेदारी आहे त असां तव्हांखे आंसर ॾियूं, तव्हांखे जवाबु ॾियूं ऐं तव्हांखे इंगेज रखण जी कोशिशि कबी। ऐं अॻियां हली करे ज़ाहिर आहे सनाउल्लाह एक्सपीरियंस्ड आहिनि, उनखे ख़बर आहे त कहिड़े नमूने सां तव्हांखे इंगेज कबी। तव्हांखे टास्क ॾेई सघजनि था ऐं तव्हां मां जेको दोस्त इंट्रस्टेड हूंदो उनखे हिते ज़ूम जे मीटिंग रूम में बि सॾाए सघिजे थो। त इहो को इशू कोन्हे को। अॻियां हली करे जेके टेस्टूं थींदियूं उहे कोशिशि कंदासीं त MCQs जे थ्रू वठूं, सुठे अंदाज़ सां वठूं त जीअं तव्हां उनमें पार्टिसिपेट करे सघो। ज़ूम ते बि उनमें तव्हां अची सघो था ऐं फेसबुक लाइव ते तव्हां हूअं ई हूंदव। सो सुभाणे खां वरी जेको आहे वधीक जेको आहे पंहिंजो ही क्लास हलंदियूं। सुभाणे ॿियो क्लास हूंदो। अॼु जीअं पहिरियों क्लास हुयो इंट्रोडक्टरी, उनमें समूरो कोर्स तव्हांजे आॾो सनाउल्लाह साहब डिस्क्राइब कयो त छा छा तव्हां पढ़ंदव। हाणे सुभाणे खां पोइ वरी पाण स्पेसिफिक जेके आहिनि टॉपिक्स उन्हनि ते लेक्चर्स तव्हांखे ॾियणु शुरू कंदासीं ऐं ज़ाहिर तव्हां गॾु हूंदो। वरी बि जॾहिं को सवाल हुजे, का सजेशन हुजे तव्हांजी, हिन तरीक़े न हिन तरीक़े सां तव्हां असांखे पढ़ायो, हिन तरीक़े सां असां तव्हांखे सम्झायो त उन तरीक़े सां सम्झाए सघिजे थो, तव्हांजी सलाहुनि खे इनकॉर्पोरेट करे सघिजे थो पंहिंजी मेथडोलॉजी में, पंहिंजे कोर्स में। सो तव्हां फ्री आहियो सवाल करण जे लाइ ऐं सजेशन्स ॾियण जे लाइ। सो थैंक्स टू सनाउल्लाह साहब। सुभाणे खां इंशाल्लाह वरी ॿी क्लास में गॾु हूंदासीं ऐं सुभाणे ताईं ज़रूरु सर। लावाई।